Students, we are studying our chapter number 2 of economics, that is sectors of Indian economy. Till now we have studied about the three sectors of economy, that is primary sector, secondary sector, tertiary sector. Then we have compared the three sectors, that is primary, secondary and tertiary sector. Then we have studied about what is GDP, what is intermediate goods, what is final goods. Then we have seen the historical change in sectors, how the peoples are moving from primary sector to secondary sector and secondary sector to tertiary sector. Then we have seen the why most of the peoples are moving towards the tertiary sector. Then we have seen the unemployment, that is disguised unemployment, why most of the peoples are underemployed or suffering from the disguised employment in the primary sector, that is agriculture. People are also suffering from the disguised employment in the secondary and tertiary sector, but the number of the people who are suffering from the disguised employment in secondary and tertiary sector are very less as compared to the agriculture sector or primary sector. Now come to the next heading, that is how to create more employment. कैसे हम employment जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना. इसके अंदर एक रूरल एरियाज से इससे रिलेटेड बात की हुई है कि हम रूरल एरियाज के अंदर कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं. हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. From the above discussion, we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. ये करेंगे. देखिए, जो हमने अभी तक के डिस्कशन किया है उससे हमें पता चलता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. तो ये कह रहे हैं हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं इन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ के अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 hectare प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू irrigate द लैंड. लक्ष्मी विल then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizers, application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. तो ये करेंगे जैसे हमने अभी लक्ष्मी के बारे में पढ़ा था कि उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड था और वो 2 हेक्टेयर लैंड कैसा था, अनइरिगेटेड. देखो उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, ठीक है. तो अब इसके अंदर देखिए सजेशन दिए गए हैं कि किस तरह हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. कि अगर गवर्नमेंट उन्हें लोन दे दें, ठीक है ना, या फिर जो कोई बैंक है उन्हें लोन दे दे एट रीज़नेबल रेट, ठीक है ना, एक बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें अगर लोन दे दे, तो लक्ष्मी क्या कर सकती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेल करा सकती है. और जब उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ जाएंगी तो वो सेकंड क्रॉप को भी ग्रो कर सकती है रेबी सीज़न के अंदर. देखिए वो खरीफ सीज़न के अंदर ही बस क्रॉप को ग्रो करती थी, क्योंकि उस टाइम जो है वाटर की ज़्यादा नीड नहीं होती. रेबी सीज़न यानी कि जब विंटर के टाइम पे देखो बारिश नहीं होती है तो उस टाइम पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी तो रेबी की कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करती थी. तो वो कह रहे हैं कि वो सेकंड क्रॉप यानी कि वीट को ग्रो कर सकती है रेबी सीज़न के अंदर भी, अगर उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ जाए. और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए उसे क्या चाहिए, मनी. और वो मनी उसके पास कहाँ से आएगी, जब उसे बैंक देंगे या गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उन्हें एट ए रीज़नेबल रेट. तो वो कह रहे हैं कि जब वो सेकंड क्रॉप ग्रो करेगी तो उसके जो 2 और मेंबर थे फैमिली के, उन्हें 50 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, क्योंकि उसमें सोइंग भी करनी होती है और हार्वेस्टिंग भी करनी है, वाटरिंग भी करनी है, फर्टिलाइजर्स भी डालना है. तो 2 मेंबर जो हैं उसकी फैमिली के वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं. तो ये देखो, ये तो सिर्फ लक्ष्मी के लिए बात थी कि अगर लक्ष्मी के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेल कर दी जाए तो उसके यहाँ पे देखो जो 2 अंडर एम्प्लॉयड मेंबर्स थी उन्हें भी क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. अगर गवर्नमेंट बताओ एक गवर्नमेंट अगर वहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दे या कैनल वगैरह वहाँ पे बना दे, तो बहुत सारे जो लोग हैं उस गाँव के लक्ष्मी की तरह जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उनके पास भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ जाएंगी. तो इससे क्या होगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. देखो लक्ष्मी के घर से ही 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, तो पूरे विलेज से देखो कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. इससे जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. अब देखो इसमें अलग अलग मेथड बता रखे हैं. पहले बताया लक्ष्मी के लिए, फिर बताया पूरे विलेज के लिए. लक्ष्मी के लिए तो क्या था, बस उसे बैंक वगैरह लोन दे दे तो वो एक वेल वगैरह लगा लेगी, एक कुआँ रख लेगी और उससे अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसे
वाटर प्रोवाइड कर देगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ उसके पास आ जाएगी। और अगर पूरे विलेज के लिए करना है तो उसे या तो डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे गवर्नमेंट को, या फिर एक कैनल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर और भी मेथड बता रखे हैं कि जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of these. For these may be required to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads to that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell this crop. This activity can provide productivity employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade. तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये कैनल का फैसिलिटीज़ अवेल करा दी पूरे विलेजेस, सारे के सारे जो विलेजेस हैं उन्हें, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अब रेबी क्रॉप भी उगाने लगेंगे वो। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उनके पास सरप्लस में जब प्रोडक्शन होगा तो उसे मार्केट के अंदर सोल्ड आउट करेंगे, और मार्केट के अंदर सोल्ड आउट करने के लिए उन्हें किस चीज़ की नीड पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी। और जो उनका प्रोडक्शन है, जो उनके वीट राइस जो प्रोड्यूस हुए हैं उसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज की भी नीड पड़ेगी। तो देखो ट्रांसपोर्ट जब इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेल कराएगी गवर्नमेंट, तो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयमेंट डेवलप नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट की जो फील्ड है उसके अंदर भी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। स्टोरेज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो देखना आपने कि एक डैम कंस्ट्रक्ट करने से एग्रीकल्चर वालों को भी क्या मिल गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गई, और जो ट्रांसपोर्टेशन वाले थे और जो दूसरे लोग थे जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ के अंदर वर्क करते हैं उन्हें भी क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। Lakshmi need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agriculture equipment, and pump set to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from moneylenders and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3, money and credit. ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी की जो नीड थी, ज़रूरतें थी वो कन्फाइन नहीं थी सिर्फ वाटर को लेके, यानी कि सिर्फ उनकी जो नीड थी वो सिर्फ वाटर को लेके नहीं थी। उसे अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होते थे, सीड्स भी चाहिए होते थे, इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए होते थे, और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो भी चाहिए होते थे, पंप सेट भी चाहिए होता था। तो वो एक पुअर फार्मर थी, तो उसके पास इतनी मनी नहीं थी कि वो उन सब चीज़ों को बाय कर सके। और अगर वो किसी मनी लैंडर से वहाँ से लोन लेती थी तो उससे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो अगर कोई लोकल बैंक या गवर्नमेंट उन्हें एक रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर दे तो वो इन सब चीज़ों को ख़रीद लेगी और जो अपना प्रोडक्शन है उसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेगी, यानी कि सरप्लस में उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये जो है ना, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा मनी एंड क्रेडिट, उसके अंदर भी पढ़ेंगे। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and local industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea, pulse crop. Setting up a dal mill to procure and process these and sell in cities is one such example. Opening a cold storage give an opportunity for farmers to store their product like potatoes and onions and sell them when the prices is good. In village near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agriculture products like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside market. This will be provide employment in industry located in the semi-rural areas and not necessarily in the large urban centers. ये कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जो मतलब विलेज से ज़्यादा डेवलप हैं, जैसे टाउन, जैसे देवबंद भी है, ये भी क्या एक सेमी रूरल एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे दाल मिल लगा दी जैसे, तो लोग बाग वहाँ पे आएंगे और इनसे दाल वाल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज लगाए जा सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो फार्मर्स हैं वो पोटैटोज़ को, ऑनियंस को, टोमेटो को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब मार्केट के अंदर उनके प्राइसेस अच्छे हो जाएंगे तो स्टोरेज से निकाल के उसे मार्केट के अंदर ला सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छे प्राइस मिलेंगे। तो देखो फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर क्या भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो हनी को सोल्ड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी लगाई जा सकती हैं, जैसे
वहाँ पे ये कर दिया कि पोटैटो से क्या बनाने लगे, चिप्स बनाने लगे, टोमेटो से क्या बनाने लगे, केचप बनाने लगे। तो देखो इससे उनकी जो वैल्यू है इन्हांस हो जाएगी, ठीक है ना, और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर पोटैटो बेचे तो कितने के बिकेंगे, 10 रुपीज़ पर केजी, लेकिन चिप्स बनने के बाद उनके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जब वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो एक्स्ट्रा लेबर है वो इंडस्ट्री के अंदर जाके वर्क भी कर सकती है। तो इस तरह हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो देखो हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत सारे तरीके देखे। लक्ष्मी के लिए क्या था कि बस उसे एक वेल मिल जाए, ठीक है ना, एक कुआं मिल जाए तो उससे उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, तो उसके जो एक्स्ट्रा 2 मेंबर्स थे वो भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि वो रेबी सीज़न के अंदर भी क्रॉप को ग्रो कर सकती है। फिर पूरे विलेज के लिए कोई डैम या फिर कोई कैनल वगैरह कंस्ट्रक्ट करके इसी तरह पूरे विलेज से भी अंडर एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है ना। और जब देखिए इस तरह अंडर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, वहाँ पे रेबी की एक और क्रॉप ग्रो होने लगेगी, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की एंड स्टोरेज की नीड पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज से क्या होगा, और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब देखो सिर्फ लक्ष्मी की नीड वाटर नहीं थी, उसे क्या भी चाहिए थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पम्प सेट वगैरह और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं, उन सब चीज़ों की उसे नीड थी। तो उन सब चीज़ों के लिए उसे क्या चाहिए होता था, वो बोरो करती थी मनी लैंडर से, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेकिन अगर लोकल बैंकों से रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पढ़ाएंगे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से फिर वही ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इन सब की फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम और किस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में हम क्या भी कर सकते हैं, स्टोरेज लगा सकते हैं, जिससे जहाँ पे अपने जो फार्मर्स हैं पोटैटो, टोमेटो या जितने भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स या फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें उन्हें स्टोर कर सकें, जब मार्केट में उनके प्राइस अच्छे हों से सोल्ड आउट कर दें। और कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं जहाँ पे प्रोसेस किया जा सके, कि पोटैटो से चिप्स बना दिए, टोमेटो से टोमेटो केचप बना दिए, ठीक है ना। Do you know that in India about 60% of the population belong to the age group of 5 to 29 years. Out of these, only about 51% are attending educational institutions. The rest, and particularly those aged less than 18 years, may be at home, or many of them may be working as a child laborers. If these children are to attend schools, will require more buildings, more teachers, and other staff. A body conducted by the Erstwhile Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which jobs could be created, and we would be able to address the important aspect of development talk about in chapter 1. तो देखो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है वो 5 ईयर से 20 ईयर्स के अंदर बिलोंग करती है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो यूथ है, यंग पॉपुलेशन है हमारी। उसमें से कह रहे हैं कि सिर्फ 51% जो लोग हैं ना वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हैं, जिनकी एज 18 साल है, 18 साल से कम है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर की तरह वर्क कर रहे हैं या अपने घर में ऐसे ही बैठे हैं। देखो ह्यूमन रिसोर्स को अगर डेवलप करना है ना तो उसे क्वालिटेटिव बनाना पड़ेगा। क्वालिटेटिव बनाने का मतलब क्या है, किसी भी पॉपुलेशन को क्वालिटेटिव बनाने के लिए उसे एजुकेशन और हेल्थ देना ज़रूरी है। तो अगर गवर्नमेंट हमारे यहाँ के सभी बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करे तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। जैसे इन्होंने बताया कि 51% बच्चे सिर्फ स्कूल अटेंड कर रहे हैं जिनकी एज 18 से कम है। अगर सब अटेंड करें तो प्लानिंग कमीशन, जो कि अब हट चुकी है, प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज हो चुका है, अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि मतलब ये 5 ईयर प्लान बनाती है, कि बताती है कि हमारी कंट्री को कहाँ पे और किस किस फील्ड के अंदर पैसे खर्च करने चाहिए, ठीक है ना। अब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया है, अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो नीति आयोग ने ये एस्टिमेट बताया कि अगर हम हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करें अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो 20 लाख जॉब क्रिएट हो जाएंगी एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही, क्योंकि उसके लिए टीचर्स भी चाहिए, क्लर्क भी चाहिए, रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए। तो 20 लाख जो जॉब हैं वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जनरेट हो सकती हैं। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि अगर हम हेल्थ सिचुएशन को हमें इम्प्रूव करना है अपनी, तो हमें उसके लिए डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत सारी क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और देखो एजुकेशन और हेल्थ के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। ये कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism or regional craft industries or new services like IT. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved,
every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. तो देखिए ये कह रहे हैं कि हर स्टेट और हर रीजन के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है और वो एम्प्लॉयमेंट वो इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कहीं पे टूरिज़्म कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा आप देखिए कश्मीर की साइड, केरल की साइड, यहाँ पे क्या है टूरिज़्म बहुत अच्छा है। कहीं का रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, यानी कि जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत मशहूर है, जैसे सहारनपुर का जो वुड हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है फेमस है। तो इनके थ्रू क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। कहीं का IT सर्विस बहुत बढ़िया है, जैसे बेंगलोर के अंदर। तो देखो टूरिज़्म से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। जिस स्टेट का टूरिज़्म बढ़िया है वो टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस करे, जहाँ का रीजनल क्राफ्ट ज़्यादा बढ़िया है, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़िया है, वो उस पर फोकस करे। और जहाँ का IT सेक्टर ज़्यादा अच्छा है वो IT सेक्टर पर फोकस करें। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्या किस चीज़ की नीड है, एक प्रॉपर प्लानिंग और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट। प्लानिंग कमीशन देखो, जिसे आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसने कहा है कि अगर हम टूरिज़्म सेक्टर को डेवलप कर दें तो हर ईयर 35 लाख जॉब क्रिएट हों। देखो कितनी सारी जॉब क्रिएट हो जाएंगी सिर्फ टूरिज़्म के अंदर। लेकिन देखिए टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए ना 25 to 35 ईयर्स चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है टूरिज़्म सेक्टर पे वर्क नहीं करती है, क्योंकि फिर देखो लोगों को दिखेगा ही नहीं कि कुछ वर्क हो रहा है, क्योंकि टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए 25 to 35 ईयर्स चाहिए। तो इस वजह से ज़्यादातर गवर्नमेंट्स टूरिज़्म की तरफ ध्यान नहीं देती है। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Recognizing these, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, MNREGA. Under MNREGA 2005, all those who are able to and are in need work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given to the preferences under the act. ये कह रहे हैं कि जैसे हमने सजेशंस बताए ना, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना या टूरिज़्म को इम्प्रूव करना, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, टूरिज़्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए 25 to 35 ईयर्स की नीड होती है। तो कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, और इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया था, राइट टू वर्क, ठीक है ना, जो 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आया था इंडिया के, जिसे पहले नरेगा कहते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन 8% बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका भी नेम चेंज कर दिया है, अब हम इसे मनरेगा के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और ये महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है क्या, इसके अंदर देखो मनरेगा के अंदर जो 2005 के अंदर आया था और 625 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आया था हिंदुस्तान के, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट मिलती है हर ईयर एक फैमिली से कम एक आदमी को, ठीक है ना। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे 365 डेज़ में, यानी कि 1 ईयर के अंदर 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एटलीस्ट एक मेंबर को, एक फैमिली के। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है किसी फैमिली के किसी मेंबर को, तो गवर्नमेंट उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी कि बेरोज़गारी का भत्ता देती है, घर बैठे बैठे पैसे मिलते हैं उसे, ठीक है ना। और ये जब ये पहला आया था ना नरेगा एक्ट, तभी 625 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं था, ये आप मुझे चेक करके बताएंगे कितने डिस्ट्रिक्ट्स में था, ठीक है ना। मे बी 100 और 180 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये था, ठीक है ना। आप इसे चेक करके बताएंगे कि पहले जब नरेगा आया था ये कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। अब इसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर दिया है जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी उसने। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।